regarding that latest world of textile. So in this regard, we kindly request you to share your experience for the particular topic. Before that, I introduce Dr. Babita. He is assistant professor from course coordinator in textile design, NIT Kangara, and then he has a vast experience in designing line. He completed his PhD in clothing and textile, GP Pani University of Agriculture and Technology in Uttarakhand, and then he is a UGC net chair of from the particularly in the home science area, UGC New Delhi, and at the same time he has his PhD title is optimization of dyeing condition for wool and silk fabric using dye extracted from particular roots. So he's mainly working in the textile line. So I feel that Madam is more suitable for our textile area of guest lectures. So once again, on behalf of IST Fulia, we welcome you, ma'am. Now I hand over sessions to Madam. Ma'am, you can take over session, and you may speak in either Hindi or English, ma'am. So whichever you convenient, you take it. But student point of view, if you take in Hindi means they will more convenient, ma'am. Okay, no problem. So, morning everyone. Thank you, sir, for this warm welcome. So, I will start my presentation. So, just let me know if you can see my presentation or not. Just wait for a minute. Uh, yeah. Is it visible? My presentation is visible to you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, great. Okay, so the topic of today's webinar is World Textiles. As you know that, this is online lecture and just for 1 hour we are here. So talking about world textile is obviously going to be little challenging. I think आप लोगों ने already Indian textiles के बारे में पढ़ा होगा जैसे already you come from handloom background, so different kind of Indian handlooms and different kind of Indian traditional textiles or handicrafts. So let's see what all crafts and textiles and handlooms are made in different parts of the world. You can see the map of the world. This world is very vast, so obviously there will be different communities, different cultures, very diverse cultures in different parts of the world. So similarly, and you will see the different geography, different climate. कहीं पे बहुत गर्म है, कहीं पे बहुत ठंडा है, कहीं पे cold deserts हैं, कहीं पे hot deserts हैं, that way कहीं पे rain forest है, so कोई coastal country है, तो you will see different colors, you know कहीं पे आपके न्यूट्रल कलर्स यूज होते हैं, तो कहीं पे बहुत वाइब्रेंट कलर्स यूज होते हैं, कहीं पे कॉटन के टेक्सटाइल्स यूज होते हैं, तो कहीं पे वुलन मटेरियल्स ज्यादा है, लिनन फैब्रिक ज्यादा यूज होता है, कहीं पे आपके बहुत कर्वी लीनियर डिजाइन्स हैं, तो कहीं पे बहुत ट्राइबल ज्योमेट्रिक डिजाइन्स हैं, कहीं पे बहुत छोटे छोटे ज्योमेट्रिक पैटर्न्स या सिंबल्स हैं, तो कहीं पे बहुत इलेबोरेट डिजाइन्स है, अगर हम डिजाइन्स की बात करें तो I will be so in today's lecture I will be just sharing few of the world textiles and very brief. So I'll not be bombarding with you different lot of information. I'll rather show you different pictures of different textiles. तो जैसे हम इंडिया में बांधनी करते हैं, बंधेज करते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों ने भी थोड़ा बहुत लैब में किया भी होगा या देखा होगा। तो इंडियन बांधनी क्या है, बहुत वाइब्रेंट है, बहुत बड़े-बड़े डिज़ाइन्स उसमें बनते हैं। जबकि जापानीज़ शिबोरी व्हिच इज़ सिमिलर टू इंडियन बांधनी व्हिच इज़ अगेन बाउंड, टाइड, सेwn, कंप्रेस्ड, ट्विस्टेड, डिफरेंट टेक्नीक से हम फैब्रिक को रजिस्ट करते हैं, फिर उसको डाई करते हैं। मेनली आपको दिखेगा इंडिगो डाई यूज़ हो रहा है या रेड के शेड्स यूज़ हो रहे हैं या समटाइम्स लाइक इन दिस किमोनो यू आर सीइंग ब्लैक एंड व्हाइट पैटर्न। इंडियन बांधनी से कैसे डिफरेंट है जापानीज शिबोरी, यू कैन सी हियर दैट द डिजाइन्स आर वेरी इंट्रिकेट, वेरी प्रिसाइज। अभी आपको लग रहा होगा ये पर्टिकुलर शिबोरी जो आपको किमोनो दिख रहा है, उसमें बस एक जगह स्लीव में डिजाइन है या और दूसरी जगह आपके बॉटम ऑफ द किमोनो में डिजाइन आपको दिख रहा है।
जबकि अगर आप इसको ज़ूम इन करोगे तो पूरा जो फैब्रिक है, जो बैकग्राउंड फैब्रिक है, इसमें भी टाई एंड डाई किया हुआ है। सो जहाँ पे भी आपको ये बिल्कुल ग्रे एरियाज़ दिख रहे हैं, दैट इज़ अगेन टाई एंड डाइड यूजिंग वेरी माइन्यूट स्टिचेस एज़ यू कैन सी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। बहुत छोटे-छोटे डॉट्स आपको मिलेंगे ब्लैक कलर के। So this is how you differentiate Japanese shibori from Indian bandhani. And I'm showing you different, another example of Japanese shibori. Again, here you can see different, geometric florals और the different designs जैसे hemp leaves आपको मिलेंगे, यहाँ पे bamboo के shoots मिलेंगे, plum मिलेगा, पाइन मिलेगा, डिफरेंट काइंड ऑफ जो प्लांट्स स्पेशली आप देखोगे जापान में पियोनी फ्लावर, डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लोरल पैटर्न आल्सो यू विल सी। तो आप देख सकते हो कितना इंट्रिकेट डिजाइंस हैं। एंड इंटरेस्टिंग पार्ट इज दैट दे यूज डिफरेंट टूल्स which we don't use here in India में simply वो जैसे they just pick a pluck a different part of a fabric and just tie it tightly, but Japan में बहुत different techniques use होते हैं, बहुत different tools भी use होते हैं which give you such precision in the form of final fabric. Okay, as I said, बहुत brief में और just introductory part so that you can be little more curious। आप YouTube पे बहुत सारे videos देख सकते हैं, आपको पूरे exhibitions के videos भी आप देख सकते हो YouTube में, which I can share some of the links with sir later on। दूसरा टेक्सटाइल है जो शाशिको एम्ब्रॉयडरी है। अगर आपने एम्ब्रॉयडरीज के बारे में पढ़ा है तो आई एम श्योर यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट कांथा एम्ब्रॉयडरी एंड कसूती एम्ब्रॉयडरी। तो एस्थेटिकली आपको देखने में ये लग रहा है कसूती के जैसे पैटर्न्स हैं, बट फंक्शनैलिटी और यूटिलिटी वाइज इट इज मोर ऑफ मोर सिमिलर टू योर कांथा विच इज मेड इन बंगाल। जैसे हम बंगाल में पुराने कपड़ों से बिल्कुल उसको नए यूटिलिटी फॉर्म में, जैसे आपके फैब्रिक को आप लेयर करते हो, फिर उसके ऊपर कुछ डेकोरेटिव पैटर्न्स को ड्रॉ एम्ब्रॉयडरी करते हो, तो सिमिलरली जापान में भी ओल्ड से बची हो स्कर्ट या शॉल्स के रूप में उसको प्यूबर्टी, मैरिज, चाइल्ड बर्थ या ब्यूरियल बरियर श्राउड के टाइम पे उसको ये एज अ रैप अराउंड फैब्रिक यूज करते थे। तो बहुत रिचुअलिस्टिक या कल्चरल इसका मीनिंग भी है। टेक्सटाइल का प्रोसेस आप देख सकते हो, पहले हम कैसे करते हैं, जैसे हम नॉर्मली किसी फैब्रिक को डाई करने से पहले उसको मॉडेंट करते हैं, तो सिमिलरली यहाँ पे भी similar process which is like mordanting only, where we extract some kind of solution dye from bark and leaves, उसमें हम फैब्रिक को मॉडेंट कर रहे हैं, फिर उसके ऊपर हम ये मड को यूज करते हैं एज अ पेंट, डिफरेंट टूल्स के मीडियम के थ्रू उसको अप्लाई करते हैं, एंड देन डिफरेंट डाइज आल्सो मे बी अप्लाइड एज यू सॉ इन द फॉर्म ऑफ डिजाइंस। कहीं पे आपको व्हाइट पैटर्न भी मिल रहा है। सो वंस यू dry these fabric under sun and then you later on wash these fabrics, and then you where you want white areas वहां पे आप caustic सोडा एंड पीनट्स की हेल्प से उन ब्लीच भी करते हो उन पर्टिकुलर एरियाज को। ठीक है, जैसे कि आप हैंडलूम टेक्नोलॉजी के पर्टिकुलर को आप एज ए हैंडलूम टेक्सटाइल्स भी बना सकते हो। तो आप देख सकते हो हाउ डिफरेंट ब्रांड्स, ऑल दीज ग्लोबल ब्रांड्स जो कि न सिर्फ अफ्रीका में वर्क करते हैं बट दे आर ऑल्सो सप्लाइंग टू यूरोप, अमेरिका, ऑल दीज प्लेसेस। डिफरेंट ब्रांड्स एंड डिजाइनर्स आर टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम मड टेक्सटाइल्स, mud fabric, mud cloth, and using these in the form of print and the form of weave in different forms of home furnishing garments में use कर रहे हैं या accessories में use कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट फैब्रिक है चिन्स। ठीक है, चिन्स आई एम नॉट श्योर कितने लोगों ने सुना है, हो सकता है सुना भी होगा, क्योंकि चिन्स का मतलब होता है छींट से ये डराइव है और ये इंडियन टेक्सटाइल है। और आप लोग यू वुड बी क्यूरियस टू सी कि हम चिन्स की क्यों बात कर रहे हैं वर्ल्ड टेक्सटाइल के लेक्चर में। चिन्स की इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि चिन्स ऐसा टेक्सटाइल था जो ऑल ओवर द वर्ल्ड इसको हम एक्सपोर्ट करते थे इंडिया से।
तो इसलिए हमें चिंट्स जो फैब्रिक है वो साउथ ईस्ट एशिया में भी मिलेगा आपको, जैसे इंडोनेशिया, बाली, सुमात्रा, यहाँ पे भी मिलेगा। चिंट्स तरीके के फैब्रिक आपको इजिप्ट में भी देखने को मिलेंगे, यूरोप में भी मिलेंगे। इन ऑल दीज प्लेसेस दिस फैब्रिक and you can see very interesting pattern nowadays. Lot of designers जैसे high end designer या कुत्तियों designer, राहुल मिश्रा की बात करो या कोई ब्रांड की बात करो या कोई वीविंग रिलेटेड ब्रांड जैसे नल्ली सिल्क की बात करो, तो वो उन्होंने भी चिन्स के जो मोटिव्स हैं, जो पैटर्न्स हैं, उनसे इंस्पिरेशन लेके वीविंग, एम्ब्रॉयडरी, प्रिंटिंग, पेंटिंग, all such techniques have been followed. And you can see here how interesting patterns have been made, derived out of natural dyes only. These dyes were fast, जो फेड नहीं होते हैं, जो ब्लीड नहीं करते हैं, और ऐसे डिजाइन्स में बनाया जाता था जो कि यूरोपियन टेस्ट के अकॉर्डिंग भी है, या जहाँ पे भी सप्लाई किए जा रहे हैं, एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं, उनके टेस्ट के अकॉर्डिंग इन डिजाइन्स को मॉडिफाई करके बहुत इंट्रिकेटली हैंड पेंट किया जाता था इन द सिमिलर टेक्निक। इसको हम वैसे कलमकारी भी बोलते हैं, बट यस, जो अभी जो कलमकारी बनाया जाता है और जो पहले चिन्स बनाए जाते थे, उस प्रोसेस में बहुत डिफरेंस है। एंड दीज this process of making chins has been extinct now, very few people know about it. और ये टेक्सटाइल्स आपको ज्यादातर म्यूजियम में मिलेंगे, जैसे कि लंदन म्यूजियम है, आपको कोई अमेरिकन म्यूजियम है, दूसरे दूसरे कंट्रीज में आपको ये टेक्सटाइल्स मिलेंगे। तो एज आई सेड, इन 17 18 सेंचुरीज के टाइम पे ये टेक्सटाइल thousands of meters में इंडिया से एक्सपोर्ट किए जाते थे। एंड देन दोज पीपल, स्पेशली यूरोपियन पीपल, दे यूज टू मेक गारमेंट्स एज पर देयर ओन स्टाइल, जैसे गाउन्स के फॉर्म में, स्कर्ट्स एंड वेस्ट के फॉर्म में इन स्टिच करके पहनते थे। Not only in dress material, these textiles were also made for home furnishing, जैसे bedspread, curtains, wall coverings, in all pillow covers, in all these forms. एक टाइम पे इतना क्रेज था चिन्स का यूरोप में कि उनके अगर घरों में कोई एंटर करता था तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई अ पर्सन वेदर ही इज इन द रूम और नॉट, क्योंकि पूरा कमरा, पूरा रूम सिर्फ चिन्स के वॉलपेपर हैं, चिन्स के बेड स्प्रेड्स हैं, चिन्स के होम फर्निशिंग है, चिन्स का ड्रेस मटेरियल है, पूरा रूम ही चिन से भरा होता था। दैट वाज द beauty of these chins textile. You can study in detail about these textiles again, as I'm telling. So now let's go to the another textile. आप जहाँ पे भी आपको कोई क्वेश्चन है, समझ में नहीं आ रहा है, यू कैन आस्क मी। मोला टेक्सटाइल है जो कि एक, यस, एनी क्वेश्चन? मैम वो स्लाइड शो नहीं हो रहा है। ओके, सो आपको मेरा स्लाइड नेक्स्ट कौन सा स्लाइड आपको दिख रहा है? अभी दिख रहा है मैम। अच्छा, अगर मैं इसको फुल स्क्रीन करूं, आपको नहीं दिख रहा है? फुल अभी आपको पुराने जो भी मैंने आपको स्लाइड्स दिखाए वो दिखे थे अभी? नो मैम, ये वर्ल्ड टेक्सटाइल वाला ही दिख रहा था। तो आपको मुझे बताना चाहिए था ना, जैसे ये मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। नाउ कैन यू सी द वर्ल्ड मैप? यस मैम, अभी दिख रहा है। Okay, so I already explained about how different cultures are there around the world. ठीक है, मैंने इसको आपको ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। फिर हमने बात करी कि कैसे, आई एम नॉट श्योर इफ यू कैन सी दिस, दूसरा दिख रहा है आपको, जापानीज टेक्सटाइल्स, जापानीज शिबोरी, यस। थर्ड स्लाइड, कैन यू सी मी प्लीज? कोई अनम्यूट करके मुझे बताओ। यस यस मैम। ये जापानीज शिबोरी भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, ठीक है, जिसमें बहुत माइन्यूट डिजाइन्स बनते हैं। फिर मैंने आपको और भी डिजाइन्स दिखाए जिसमें आपको डिफरेंट जापानीज
डिजाइन जैसे हेम्प लीव्स मिलते हैं, पाइन, बैम्बू, प्लम, ये सारे डिजाइन हम टाई एंड डाई के फॉर्म में बनाते हैं। फिर मैंने आपको बताया एम्ब्रॉयडरी के बारे में, जहाँ पे मैंने ये रोब्स दिखाए आपको, जहाँ पे आप कसूती टाइप की एम्ब्रॉयडरी है, यूटिलिटेरियन वैल्यू कांथा के जैसी है। फिर मैंने आपको कुछ और डिजाइन्स आपको बताए जो कि ज्योमेट्रिक पैटर्न्स हैं, बट आपको इनका सिंबॉलिक मीनिंग है जापानीज लोगों के लिए, और वो साशिको एम्ब्रॉयडरी के फॉर्म में इसको बनाते हैं। ये सस्टेनेबल टेक्सटाइल का एक एग्जाम्पल है। देन आई टॉक्ड अबाउट मड क्लॉथ विच इज मेड where the mud is used for painting, where you can see how the different patterns are made by the Mali people in the West Africa. यहाँ पे आप देख सकते हो कैसे हम मड को यूज कर रहे हैं, और कैसे ये एज अ कैमोफ्लेज के रूप में ये फैब्रिक यूज करते थे, और सिग्निफिकेंट इम्पॉर्टेंट जो लाइफ के इवेंट्स होते हैं जैसे मैरिज है, चाइल्ड बर्थ है, बरियल शाउट है, उस टाइम पे ये फैब्रिक को वो यूज करते थे। प्रोसेस आप देख सकते हो कैसे वो मड को यूज कर रहे हैं। पहले उसको मॉडर्न करते थे फैब्रिक को, फिर उसके ऊपर से मड अप्लाई करते थे, फिर उसको बाकी सुखाते थे, बार बार उसको अप्लाई करते थे, देन दे यूज टू वॉश इट। कभी आप डाई भी यूज कर सकते हैं उसको, फिर आप ब्लीच कर सकते हैं कुछ पार्ट्स में। तो डिफरेंट डिजाइन वो बनाते थे मड क्लॉथ में। कई सारे डिजाइनर्स ने इस पे काम किया है। नाइजीरियन फैशन डिजाइनर्स ने भी किया है, अमेरिकन फैशन डिजाइनर्स ने भी काम किया है मड क्लॉथ के ऊपर। ठीक है, कैन यू सी माई दिस स्लाइड चिंट्स? यस मैम। ओके, सो चिंट्स का मैंने आपको बताया, इसको मैं थोड़ा सा एनलार्ज कर देती हूँ। चिंट्स के बारे में मैंने बताया, बहुत इंटरेस्टिंग, आपको इसके बारे में आप डिटेल में रिसर्च कर सकते हो। बहुत डिजाइन्स यू विल सी इन चिंट्स। चिंट्स का मतलब होता है छींट पैटर्न, जहाँ पे जैसे डॉटेड पैटर्न, जिसमें आप देख सकते हो कहीं पे आपको ब्रश के जैसे स्ट्रोक्स दिख रहे हैं, कहीं पे पेन टूल जैसे यूज किया हुआ है, कहीं पे बाटिक का इफेक्ट आ रहा है, कहीं पे एक ही कलर के बहुत शेड्स आपको दिख रहे हैं, डिफरेंट टोन्स ऑफ ब्रिक रेड एंड देन ब्राउन्स एंड देन डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लूज। और एक लीफ के अंदर ही आप देखोगे बहुत सारे पैटर्न्स हैं, और एक फ्लावर को भी आप अगर देखोगे तो हर फ्लावर को अलग अलग तरीके से वो रेंडर करते थे। तो ये डिजाइन्स आपके यूरोप में एक्सपोर्ट होते थे, साउथ ईस्ट एशिया में एक्सपोर्ट होते थे इन यार्डेजेस ऑफ फैब्रिक्स। फिर वो लोग इसको ड्रेस मटेरियल के उसमें ऑक्शन होता था यूरोप में इन डिफरेंट पार्ट्स, उसमें फिर वो परचेज करते थे जिसको चाहिए, एंड देन दे यूज टू स्टिच इट लेटर ऑन एज पर देयर फैशन ट्रेंड। जैसे गाउन्स बना दिए, आपके स्कर्ट्स एंड ब्लाउजेस बना दिए ऑन ऑल दैट। उसके अलावा दे यूज टू यूज दीज चिन्स इन द होम फर्निशिंग ऑल्सो। जैसे हम पालम पोर्स, आप टर्म देखोगे जब इसके बारे में स्टडी करोगे, जैसे पालम पोर्स मतलब जो पलंग पोश जिसको हम बोलते हैं, वो लोग इसको पालम पोर्स बोलते थे। बेड स्प्रेड्स के रूप में, कर्टेन्स के फॉर्म में, चादर है, बेडशीट है आपकी, जैसे कुशन कवर्स हैं, फ्रिल्स हैं, कर्टेन्स हैं, like they used to decorate the whole room with the chintz fabric। इतना ज्यादा क्रेज था, इतना ज्यादा क्रेज था कि फ्रेंच को, इंग्लैंड को, फ्रांस और इंग्लैंड को ये बैन करना पड़ा इसका इंपोर्ट। लोगों ने फिर भी बैन करने के बाद भी लोगों ने इसको यूज करना नहीं छोड़ा। दे यूज टू काइंड ऑफ स्मगल इट, जैसे होता है ना ब्लैक में उसको खरीदते थे, एंड देन लेटर ऑन दे काइंड ऑफ बैंड इट एंड बैंड द यूज ऑफ इट, कि कोई अगर पहना हुआ भी दिख रहा है तो उसको फाइन लगता था, या उसको एक तरीके से पनिशमेंट मिलता था। इस तरीके से उन्होंने इसका क्रेज कम करवाया इंग्लैंड में। ठीक है, इतना ज्यादा इंडियन फैब्रिक का क्रेज था, दूसरी कंट्रीज में आप देख सकते हो। आपको जैसे स्लाइड शो के बाद नहीं दिख रहा है तो आई एम जस्ट शोइंग यू नाउ थ्रू दिस। लेट मी सी, अभी आपको दिख रहा है मोला टेक्सटाइल दिख रहा है, मोला लिखा हुआ? यस मैम दिख रहा है। Okay, great.
सो मोला टेक्सटाइल आपको मैंने मैप में भी दिखा रही हूँ मैं। यूएसए और ये नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका के बीच में कहाँ पे एक टिप में है, आप देख सकते हो। पनामा करके एक कंट्री है, कोस्टल कंट्री है, तो आप देख सकते हो चारों ओर से पानी से भरा हुआ है। तो यहाँ पे एक टेक्सटाइल बनाते थे, वहाँ पे इंडिजिनस ट्राइब है एक, गूना या कूना करके जिसको हम बोलते हैं। वो अपनी ब्लाउजेस को डेकोरेट करते हैं इन फैब्रिक्स में, जहाँ पे वो एप्लीक टेक्निक को यूज करते हैं। मुझे आई एम श्योर आपने जैसे पिपली में, जैसे पुरी में एप्लीक करते हैं, पिपली में एप्लीक करते हैं, आपने देखा होगा एप्लीक क्राफ्ट, जहाँ पे हम फैब्रिक के डिफरेंट लेयर्स को साथ में मिला पैच करके एक तरीके से स्टिच करते हैं। लेकिन ये यूजुअल एप्लीक से थोड़ा सा डिफरेंट है, जिसमें हम फैब्रिक को नीचे से लेयर अप करते हैं, जैसे आपको यहाँ पे देख रहे हो। आई just a minute, next, ये जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, आप इतने सारे डिजाइन्स हैं, वाइब्रेंट कलर्स हैं, बहुत सारे कलर्स आपको दिख रहे हैं। तो ये सारे जो फैब्रिक्स हैं, एक बेस फैब्रिक लिया गया है, जैसे कहीं पे आपको ब्राउन दिख रहा है, मरून दिख रहा है, ब्लैक दिख रहा है, और उसके नीचे से ये कलर्ड फैब्रिक को लगाते हैं एंड देन दे फोल्ड करते हैं उसको नीचे से ही, और उसको फिर हेमिंग करके स्टिच करते हैं। यानी कि ये रिवर्स एप्लीक करके एक टेक्निक है, जहाँ पे ये गुना जो विमेन थे वो अपने ब्लाउजेस को डेकोरेट करने के लिए फ्रंट एंड बैक से इस फैब्रिक को अटैच करते हैं। ठीक है, पहले ये पूरा एक ड्रेस के फॉर्म में बनाते थे, फिर बाद में उन्होंने उसको कट करके अगेन जो भी लेफ्ट ओवर फैब्रिक्स हैं, जैसे अभी हम सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं, तो पुराने फैब्रिक्स को यूज करके वो इस तरीके से बहुत अगेन जो उनके डिजाइन्स होंगे, जैसे आपके टर्टल्स मिलेंगे, आपको फिशेस मिलेंगे डिफरेंट टाइप से डक्स मिलेंगे, जो भी आपको कोस्टल कंट्रीज में जो एनिमल्स मिलते हैं, उस तरीके के डिजाइन्स आप उनके टेक्सटाइल्स में देखोगे। ठीक है, अब चलते हैं हम सेंट्रल एशिया में, जहाँ पे आप देखते हो कि ड्राई डेजर्ट है, कोल्ड डेजर्ट है बेसिकली, जैसे उज्बेकिस्तान है, आपका अफगानिस्तान है, वहां पे ये इकत टेक्सटाइल बनाते हैं। जैसे इकत आपने इंडिया में भी पढ़ा होगा, जैसे पटोला में इकत टेक्निक है, उड़ीसा बांधा में इकत टेक्निक है, ठीक है, ऐसी आंध्र प्रदेश में इकत टेक्निक है। तो सेंट्रल एशिया में भी इकत डिजाइन, इकत टेक्निक आप फॉलो करते हैं। डिजाइन देख के आपको समझ में आ जाएगा कि ये वॉक इकत डिजाइन्स हैं, जहाँ पे ज्यादातर मोटिव्स आपको इलोंगेटेड मिलेंगे। अगेन इन मोटिव्स का एक मीनिंग है, मतलब सिंबॉलिक मोटिव्स हैं ये, ऐसे ही रैंडमली नहीं बनाए गए हैं। सिल्क फैब्रिक में बनाते थे रोब्स के लिए, स्पेशली मतलब रॉयल्टी के लिए, हाई क्लास पीपल के लिए। कभी कभी इन तरीके के इकट टेक्सटाइल को लाइनिंग मटेरियल में भी, जैसे विमेन रोब्स में अगर कोई सेरेमनी है तो वहाँ पे एज ए लाइनिंग मटेरियल भी वो इनका यूज करते थे। और बहुत इंटरेस्टिंग मोटिव्स आपको दिखेंगे। अभी बहुत सारे फैशन डिजाइनर या बहुत सारे ब्रांड्स इनसे इंस्पायर सिंपली आपको प्रिंट भी मतलब इनकॉर्पोरेट करते हैं अपने फैब्रिक्स में। You can see here how vibrant, very bold, beautiful designs are made in the form of ikat. और ये कहीं कहीं पे आपको दिख रहा होगा कि ऐसे लग रहा है रिवर साइड है गारमेंट का। These are not the front side, sometimes these are river side of the garment. तो आप देख सकते हो कि these clothing were used as a marker of status. कभी कभी वो as a hanging also, घरों में hangings के फॉर्म में भी यूज करते थे। Traditionally, these textiles were used for male and female robes, linings में, wall hangings में, coverlets में. They were considered as a luxury to be used for special occasions and gifts के form में भी वो इनको यूज करते थे। जैसे pomegranate मोटिफ आपको मिलेगा, कहीं पे रैम हॉर्न आपको मिलेगा, कहीं पे आपको पेजली काइंड ऑफ मोटिव मिलेगा, कहीं पे ऐसे राउंडल्स काइंड ऑफ डिजाइन्स मिलेंगे, कहीं पे कॉम काइंड ऑफ डिजाइन, कंघी डिजाइन, इस तरीके के डिजाइन्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, अफ्रीकन, अभी हम वोवन टेक्सटाइल में आ गए हैं। वोवन में आपको ऑलरेडी आपने डिफरेंट वीव्स पे आप काम भी करते होगे, फैब्रिक्स भी बनाते होगे। तो अगेन एज आई एम टेलिंग यू कि आप वर्ल्ड टेक्सटाइल्स से भी इंस्पिरेशन लेके अपने फैब्रिक्स को बना सकते हैं।
एक इंटरेस्टिंग टेक्सटाइल है केंटे फैब्रिक, हम इसको बोलते हैं, घाना वेस्ट अफ्रीका में, जहाँ पे ये इन सेरेमनीज में स्पेशली वो यूज करते थे केंटे फैब्रिक्स को। और जैसे आपको दिख रहा है बहुत वाइब्रेंट कलरफुल ये भी दिख रहा है, और आपको यहाँ पे कोई एक एज टोगा के फॉर्म में या एज अ क्लोक के फॉर्म में वो इसको पहन रहे हैं, रैप अराउंड के फॉर्म में पहन रहे हैं। एंड दीज आर मेड ऑन वेरी सिंपल प्रिमिटिव लूम्स, जैसे आप फूट ऑपरेटेड लूम्स आपको दिख रहा है, बहुत इजी टू इंस्टॉल है जो कि, एंड बहुत नैरो बैंड्स में ये फैब्रिक वीव किया जाता है कॉटन में, हैंडस्पन कॉटन में, एंड देन इट इज लेटर ऑन स्टिच टुगेदर। हियर यू कैन सी जैसे छोटे छोटे बैंड्स, पतली पतली बैंड्स हैं, नैरो बैंड्स हैं, उनको आपस में स्टिच करके एक बड़ा फैब्रिक बनाया गया है। और बहुत इंटरेस्टिंग पैटर्न्स आपको इसमें दिख रहे हैं, कहीं पे आपको वॉफ फेस्ड डिजाइन्स दिख रहे हैं, कहीं पे वेफ्ट फेस्ड डिजाइन्स दिख रहे हैं। तो इन डिजाइन्स को ऐसे ही वो रैंडमली नहीं बनाते, इनका कुछ सिंबॉलिक मीनिंग होता है, जैसे सम सिग्निफाई स्टेटस, पावर, विजडम, हेड ऑफ द फैमिली एंड ऑल दोज थिंग्स। एंड how the women of the community in different colors and different patterns are wearing these for different ceremonies, weddings में, different other occasions में, इस तरीके से वो पहन रहे हैं। However, अभी क्या हो रहा है कि इनको हम प्रिंट फॉर्म में भी आपको दिखेगा, जहाँ पे जैसे खाली डिजिटल प्रिंट कर दिया फैब्रिक, screen print कर दिया. So that means yes, all these textiles have these challenges that people are not going for the original way of making these and coming up with these you know like easily produced prints. बट यस, बहुत सिग्निफिकेंस है केंटी फैब्रिक का, और बहुत सारे डिजाइनर्स इसको वेस्टर्न वेयर में बना रहे हैं, जैसे गाउन्स हैं, शर्ट्स हैं, या आपके हैंड बैग्स हैं, शूज हैं, उन डिफरेंट फैशन एंड एक्सेसरीज में, होम टेक्सटाइल्स में इस फैब्रिक का यूज कर रहे हैं। ओके, आई मूव टू द नेक्स्ट वन। आप प्लीज मुझे बीच में रोक भी सकते हैं अगर आपको लग रहा है कि हमें थोड़ा और टाइम चाहिए पिक्चर देखने के लिए, या कैसे बना है नहीं समझ में आ रहा है। प्लीज कीप इन माइंड कि मैं अभी प्रोसेस में बहुत डिटेल में नहीं जा रही हूँ, स्टेप वाइज क्या करते हैं। मैं आपको बस आइडेंटिफाई करने में, आप इजीली आइडेंटिफाई कर लो टेक्सटाइल को, मैं इसलिए आपको विजुअल्स दिखा रही हूँ, फोटोग्राफ्स दिखा रही हूँ। आपको और डिटेल में जानने के लिए आप वीडियोस अच्छे से देख सकते हैं। आप किसी म्यूजियम की वेबसाइट पे जाके इनके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ सकते हैं। मैं आपको लिमिटेड इमेजेस दिखा रही हूँ, बहुत सारे और डिजाइन आपको दिखेंगे इन सारे टेक्सटाइल्स में। ठीक है, नाउ कमिंग टू चाइनीज टेपेस्ट्री। आई एम श्योर आप टेपेस्ट्री के बारे में जानते होंगे, हाउ टेपेस्ट्रीज आर मेड। ठीक है, वोवन टेपेस्ट्री जैसे सिंपली हम जैसे वॉल डेकोरेटिव कोई वॉल हैंगिंग है उसको भी आप टेपेस्ट्री बोलते हैं, अगर कोई एम्ब्रॉयडर्ड है, कोई पेंटेड है, उसको भी टेपेस्ट्री बोलते हैं। बट ओरिजिनली जो टेपेस्ट्रीज थे वो ज्यादातर आके वोवन टेपेस्ट्रीज थे। जो ये चाइनीज आपको इसमें थीम्स मिल रहे हैं, जैसे मिथिकल बर्ड है, फिनिक्स बर्ड, जैसे जो सुपर नेचुरल बर्ड है, जो एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करती है, बट लोगों को लगता है कि पहले ये एग्जिस्ट करती थी, इसके पास सुपर पावर है। एंड देर आर सम अदर फ्लोरल थीम्स, जैसे पियोनीज टाइप के फ्लावर्स मिल रहे हैं आपको बैकग्राउंड में, डिफरेंट वेव्स आपको दिखेंगे, क्लाउड्स दिखेंगे, डिफरेंट ट्रीज एंड लीव्स आपको दिखेंगे। तो ये जो चाइनीज टेपेस्ट्री है ये पहले सिल्क में बनाया जाता था, बोथ साइड ये सेम लगता था क्योंकि इसको इतने प्रिसाइज फॉर्म में बनाते थे। इट यूज टू बी लुक इट यूज टू लुक सेम फ्रॉम बोथ द साइड्स। आप इसमें देख सकते हो हाउ कलर्स आर वाइब्रेंट, इसको हम केसी बोलते हैं, बेसिकली केसी टेक्सटाइल, क्योंकि ऐसा लगता है ये कट वर्क इन्होंने फॉलो किया है, जैसे कि एक धागा एक जगह से शुरू होकर दूसरी जगह मोटिव बनाया एंड देन वहीं पे कट हो गया, इट इज नॉट गेटिंग फ्लोटेड टू द अदर एंड। और सारे कलर्स इतने शार्प आपको दिख रहे हैं, कहीं भी आपको ऐसा ब्लेंड नहीं दिख रहा है कलर्स के बीच में, और इतना आप डिटेल में हर एलिमेंट को यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, सो दिस इज हाउ इट लुक लाइक। जहाँ जैसे ये अनदर केस आई एम शोइंग यू, and where there is a backdrop
बैकग्राउंड जैसे यू नो बैकग्राउंड आप देख रहे हो, आर्किटेक्चर आपको दिख रहा है बैकड्रॉप में, आपको कुछ आपके फ्लावर्स दिख रहे हैं, कुछ आपको बैम्बू लीव्स आपको दिख रहे हैं, क्लाउड्स जैसे वेव्स भी आपको दिख रहे हैं, फिनिक्स वाली बर्ड आपको दिख रही है, ठीक है। वेरी इंटरेस्टिंग पैटर्न्स आर मेड इन चाइनीज टेपेस्ट्रीज एंड लुक एट हाउ डिफरेंट आउटलाइंस आर मेड, यू नो कहीं पे आउटलाइन किया हुआ है व्हाइट कलर से, डिफरेंट इंटरेस्टिंग कलर पैलेट है, बहुत सूदिंग कलर पैलेट है, सिल्क में यूज होते थे एज अ वॉल हैंगिंग एंड देन एज आई सेड बहुत लाइट कलर थे, लाइट वेट मटेरियल, ये बहुत हैवी वेट फैब्रिक नहीं बनता था टेपेस्ट्री में, ये बहुत लाइट वेट होते थे एंड जिसको हम यू नो पैलेसेस को डेकोरेट करने के लिए घरों में वॉल हैंगिंग के फॉर्म में यूज करते थे चाइनीज पीपल। ओके, ओके, I'll move to the next one. Again, I'm showing you the Chinese tapestry only. KC textile आप देख सकते हो। आप देखो यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे एम्ब्रॉयडरी किया होगा या डिजिटल एम्ब्रॉयडरी है ना, या ऐसा लग रहा है पेंट किया होगा। कितना डिटेल में एक पर्सपेक्टिव भी दिखाया हुआ है, कौन सी चीज फ्रंट में है, कौन सी चीज बैकवर्ड है, यू नो लाइफ यू नो लैंडस्केप को दिखाया हुआ है, कहीं पे लोग ब्रिज से जा रहे हैं, कहीं पे यू नो बोटिंग कर रहे हैं, बोट में हैं, कहीं पे आपके पैलेस में है, कहीं पे आपके टावर में है। There are different trees, different, you know, mountains and whole, how the river is flowing from one end to the another end, how people are interacting, how people are performing different tasks. So all this is made in the form of a woven textile. So see, you can now imagine कि कितना intricately उन्होंने इन चीजों को weave किया हुआ है और उसमें कितने subtle colors का use किया हुआ है, ठीक है। सो अभी मैं आपको वोवन टेक्सटाइल्स दिखा रही हूँ। यूरोपियन टेपेस्ट्री इज अनदर टॉपिक विच इज वेरी इंटरेस्टिंग। इसमें भी यूरोपियन टेपेस्ट्री में स्पेशली ड्यूरिंग रेनेसां पीरियड, यू नो 13, 14, 15 सेंचुरी के टाइम पे आप देख सकते हो। इनिशियली ये बहुत बेसिक मोटिव बनाते थे, बाद में इन्होंने पूरे पूरे नैरेटिव यानी कि स्टोरी टेलिंग को डिपिक्ट करने लग गए ये अपनी टेपेस्ट्रीज के फॉर्म में। जो यूरोपियन यू नो बड़े-बड़े आपके पैलेसेस या कैसल्स थे, जो ग्लूमी डार्क ग्लूमी कैसल्स को डेकोरेट करने के लिए, जहाँ पे यू नो व्हिच यूज्ड टू बी कोल्ड एंड डार्क, उसको थोड़ा ब्राइटन करने के लिए, या अगर कोई राजा एक जगह से दूसरे जगह पे ठहर रहा है, तो वो भी अपने बाहर इसको इन फॉर्म ऑफ यू नो कि यू नो सम किंग हैज अराइव्ड एट अ पर्टिकुलर प्लेस, उसको दिखाने के लिए भी वो इन टेपेस्ट्रीज को यूज करते थे। एंड यू कैन सी हियर दीज आर अगेन वोवन टेपेस्ट्रीज, और इनको सीरीज के फॉर्म में, जैसे अगर वॉर डिपिक्ट करना है या बिटवीन टू डिफरेंट किंगडम्स वॉर दिखाना है, तो वो सीक्वेंस में कि एक साथ 8 से 10 टेपेस्ट्री, 5 टेपेस्ट्री, 6 टेपेस्ट्री ऐसे बनाते थे एंड दे यूज्ड टू डिपिक्ट द होल स्टोरी, ठीक है। अब जैसे इस टेपेस्ट्री में आप देखोगे कितना डिटेल में उन्होंने दिखाया है, एनिमल्स हैं, कहीं पे स्टैटिक सीन्स हैं कि यू नो पैलेस के अंदर लोग बात कर रहे हैं, कहीं पे फाइट कर रहे हैं, कहीं पे टेंट में बात कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, यू नो कहीं पे फ्लैग्स हैं डिफरेंट अलग अलग ट्राइब्स के या कम्युनिटीज के, कहीं पे यू नो फाइटिंग हो रही है, हाउ द पीपल आर फाइटिंग अमंग ईच अदर। So you can see these are the scenes from War of Troy, originally the 9th of 11 tapestries. तो ये जो War of Troy था ये 11 tapestries में, you know, up to 11 tapestries they made. This is the 9th one and made in the 15th century, जिसमें wool and silk material का use किया गया है। background background voice will just quickly finish. फिर आप देख सकते हो again I'm showing you the you know the intricacy of the tapestries. those were made in Europe. अब ये देख सकते हो ये पहले वाले से भी और डिटेल्ड है, इसमें आप देख सकते हो पूरा पर्सपेक्टिव, बैकग्राउंड क्या है, फोरग्राउंड क्या है, उसमें एक बॉर्डर भी है जो बहुत उनके आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन को डिपिक्ट कर रहा है। अगेन दिस इज द 12th यू नो वन ऑफ द 12 टेपेस्ट्रीज, यू नो जो कि 16th सेंचुरी में वुल सिल्क सिल्वर एंड गोल्ड थ्रेड्स के यूज करके बनाया गया। ऑलमोस्ट 5 to 6 years इसको बनाने में लगे थे।
एंड लेटर ऑन इन टेपेस्ट्रीज को जहाँ पे इन्होंने गोल्ड यूज किया बहुत सारा इन टेपेस्ट्रीज हमारा क्या पता नहीं कितने समय पर is new that somebody is yeah वाला स्टेज आया यूरोप में गोल्ड को निकालने के लिए इन टेपेस्ट्रीज से कई सारे टेपेस्ट्रीज उन्होंने जा भी दिए so that they can extract the gold from tapestries which was so valuable metal for them. You can see now coming to carpets. कारपेट में वर्ल्ड कारपेट्स करके ही अपना एक बहुत बड़ा टॉपिक है जहाँ पे हाउ कारपेट्स आर मेड इन डिफरेंट पार्ट्स चाहे चाइना में बनते हैं या इंडिया में बनते हैं या आपके यूरोप में या पर्शिया या आपके टर्की Egypt on all these places wherever carpets are made it's a huge topic. I'm just showing you one carpet which is considered to be the very most beautiful carpet in the world. you know uh, ये दो ये पेयर्स में बनाया गया मतलब दो इसके दो जैसे हम कहते हैं कि दो सैंपल्स इसके बने इस कारपेट के जिसको हम बोलते हैं अर्धबील कारपेट इसका नाम है जो ऑलमोस्ट 16 सेंचुरी में बना है एंड यू कैन सी अगर मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ इसमें लेफ्ट साइड कि कितने स्क्रॉल्स पैटर्न्स हैं हर एक पामेट को अलग अलग डिजाइन्स बनाए गए हैं जैसे आपके हैंड नॉटेड कारपेट बनते हैं दिस इज मेड इन द सिमिलर वे दिस इज अ हैंड नॉटेड कारपेट ओके इसमें आप देख सकते हो बॉर्डर को कैसे डेकोरेट किया है फिर बीच में मेडेलियन है फिर वो लैंटर्न जैसे बनाए गए हैं एक छोटा लैंटर्न है एक बड़ा लैंटर्न है ये भी इसलिए जानबूझ के बनाया गया है वो सोचते थे मुस्लिम पीपल दे यूज्ड टू थिंक दैट ओनली गॉड इज द परफेक्ट वन ठीक है तो वो जानबूझ के कहीं ना कहीं कुछ एरर कुछ एक गलती करते थे अपने प्रोडक्ट आ रहे हैं फिर क्वार्टर डिजाइन्स भी हैं चार कॉर्नर्स में आप कुछ डिजाइन्स आपके बॉर्डर में भी हैं तो सिल्क में बनाए गए हैं ये कारपेट्स आपके कई सारे कारपेट्स हैं पर्शिया कारपेट आप स्टडी कर सकते हो टर्किश कारपेट आप स्टडी कर सकते हो यू विल सी ये जो कारपेट्स थे कुछ कारपेट्स आपके पैलेसेस में बन रहे थे जहाँ पैलेस राजा महाराजा के यूज के लिए कुछ कारपेट्स आपके ट्राइब्स में बन रहे थे लोग ने डोमेस्टिक नीड को फुलफिल करने के लिए कोल्ड से बचने के लिए या वॉल को डेकोरेट करने के लिए एज अ फ्लोर कवरिंग दे वो यूजिंग कुछ आपके सिंपली हैंड वोवन थे कुछ आपके जैसे प्रेयर रग्स होते हैं वास कारपेट्स होते हैं गार्डन कारपेट्स होते हैं आपके एनिमल बेस्ड कारपेट्स हैं जहाँ पे एनिमल थीम्स हैं कहीं पे आपको ये ऐसे शिकारगाह काइंड ऑफ जैसे जहाँ पे कुछ जंगल में कुछ आपकी फाइटिंग हो रही है एनिमल के बीच में या इस तरीके के सीन्स भी वो डिपिक्ट करते थे ठीक है तो इट लुक्स मोर ऑफ कुछ डिजाइन्स आपके कर्वीलिनियर डिजाइन्स हैं कुछ आपके रेक्टिलिनियर डिजाइन्स हैं तो आप बहुत सारे इसमें वैरायटीज मिलेंगे ठीक है सो एज आई सेड वॉल टेक्सटाइल which was just meant for 1 hour. I've just given you a basic introduction. है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं और आप मेरे को मेरे मेल आईडी पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं आई होप you could see all these slides after that error initially and आपके पास कोई भी क्वेश्चन है प्लीज आस्क I'll be happy to answer if I could yes at least सारे स्टूडेंट्स वीडियो अपना दिखा सकते हैं बिकॉज दिस इज द फर्स्ट टाइम मैं किसी हैंडलूम टेक्नोलॉजी रिलेटेड कॉलेज में लेक्चर दे रही हूँ Any question you can ask it? could you see all the slides sir later on Yeah. Yes.
Any question you can ask that. सर एक क्वेश्चन मेरा आपसे है, जैसे ये स्टूडेंट्स काफी सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते होंगे, सो इज दिस टॉपिक रेलेवेंट एंड रिलेटेड और समवट Yeah. relevant for the Already here there is two subjects are there. One is weaving, another one is dyeing part. So word processing. So in word processing, they studied deeply in dyeing, printing techniques, everything. So automatically, the final year student they get the knowledge about that dyeing and printing. So you cover that important elements of that printing. So definitely the student will understand that. इनफैक्ट एज आई टोल्ड यू दैट वर्ल्ड टेक्सटाइल से इंस्पिरेशन लेके आजकल स्टूडेंट नए डिजाइन्स भी बना सकते हैं, लाइक विच मे बी फॉर इंडियन मार्केट आल्सो, दैट इज आल्सो पॉसिबल. Yeah. Madam, any question? You can ask that. Surely our student will never open their mouth. So anyway, so once again, there is no question means once again, thank you very much, ma'am, for your wonderful time to spend our students. This is the first time, so hope we are doing in the future. If you, time permits me, you can come to our IST Fulia. So if we physical lecture means it's more interactive and then more affects the students. So on behalf of IHT Fulia, we thank you once again to you for a wonderful session for this to engage really for world textiles. So hope we are doing future also we have to club together to giving a very good lecture from regarding that fashion design area. So probably some of the students they may join in NIFT probably in NIFT they'll some of the students they like to join in BF Tech. So if you recommend we I'll call you and we give me guidance to our students. So how to clear that NIFT entrance exam everything. So tomorrow session we have conducted how to crack the NIFT exam. So Sure. one of the person from Tamil Nadu, he ranked one student from 2018, I think. So Dr. Chikitika, she was my student. So tomorrow he will give the lesson regarding that how to crack the NIFT exam. So probably if anything guidance means please guide our students. Definitely they will call you or they will mail you. So according to that, you will give me your help to our students now. Once again, thank you very much. Thank you, sir. Thank you. Have a good day. Okay, we will leave.